In the previous class, we have discussed about the domain of the functions. We'll be discussing more questions based on the domain of the functions, but before of that, we'll be discussing about the trigonometric functions: sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, greatest integer function, fractional part of x, and then question based on the domain, and then we'll be taking question based on the range. But basic curves discuss करते हैं हम trigonometric functions. Those are there in class 11th also. और trigonometric functions discuss करने से पहले we discuss two terms, two important concepts in fact, which are there in functions only, जो आप functions में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जिनके क्वेश्चंस हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इस कर्व स्केचिंग में हमें काफ़ी हेल्प करेंगे. उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ. वन इज अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन. We are going to discuss this concept separately in the same topic. तो periodic functions की बात करें तो in case of periodic functions, what is the periodic function? If y equals to f of x is some function there, a function is said to be a periodic function with some time interval t, provided f of x plus t becomes fx. We are discussing this because all the six trigonometric functions, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, those are periodic functions in nature which repeats after certain time interval. एक टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट करते हैं. तो f of x plus t is equals to fx and t is nothing but t is the time period of that curve, और वो होता है यहाँ पर t जो डिफाइंड है, that is the least positive real value, the least positive real value which is independent of x. Least positive real value which is independent of x. टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड t के टाइम इंटरवल से कर्व रिपीट कर रहा है. f of x plus t is again becoming fx. एक टाइम इंटरवल के बाद में कर्व सेम वैल्यूज फिर से अटेंड कर रहा है. क्या होता है t? t is the time period which is the least positive real value, that is always going to be a positive value. जो भी पीरियोडिक कर्व की बात कर रहे हैं हम, तो पीरियोडिक कर्व ऑलवेज हैविंग सम पॉजिटिव वैल्यू. किसी भी कर्व के लिए टाइम पीरियड नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी. रियल वैल्यू विच कुड बी रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, किसी भी फंक्शन का टाइम पीरियड जो होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द एक्स. वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ऐसा नहीं होगा पाई एक्स या 2 पाई एक्स या 3 पाई एक्स या 2 एक्स या एक्स, ऐसा नहीं. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. और अगर एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा. इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट एवरी फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन. सारे फंक्शन पीरियोडिक नहीं होंगे, लेकिन जो फंक्शन पीरियोडिक होंगे उनका टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा. वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो फिक्स वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो रियल वैल्यू होगी विच कुड बी रैशनल, विच कुड बी इरेशनल. पॉजिटिव वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड देयर इज अ मीनिंग लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू. जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जिस वैल्यू के आफ्टर दैट कर्व रिपीट्स. इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा कर्व स्केचिंग के समय. तो दैट t इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट फंक्शन. All six trigonometric functions, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, those are periodic in nature. Sin x, cos x, sec x, cosec x. ये तो हम कर्व स्केचिंग भी अभी हम समझ रहे हैं और आप बहुत ही ढंग से इसको समझ पाएंगे. Period of those curves is 2 pi. Those curves repeats after time interval of 2 pi. And then tan x as well as cot x, ये तो दोनों फंक्शंस हैं, those are periodic with period pi. ये पाई से पीरियोडिक है. all six trigonometric functions are periodic in nature. ठीक. at the same time one more concept is there, we'll be discussing in detail in the same topic only. इसी टॉपिक में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं. और एक और बात देखिएगा, if fx is having the time period as t, if instead of fx, if it is f of ax plus b, कोएफिशिएंट ऑफ x में अगर चेंज होता है
एफ एक्स का टाइम पीरियड है टी, टी के टाइम इंटरवल से कर्व रिपीट हो रहा है या फंक्शन सेम वैल्यूज अटेंड कर रहा है. नाउ द फंक्शन इज नॉट एफ एक्स, इट इज एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज चेंजिंग देयर, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. और उस केस में जो टाइम पीरियड होगा, दैट टाइम पीरियड इज टी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, टी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए. जैसे साइन एक्स, इफ इट इज साइन एक्स 2 पाई से पीरियोडिक है. अभी बेसिक इंफॉर्मेशन पे काम करने वाले हैं हम. दो बहुत कंसेप्ट्स इनिशियल वे में देखेंगे, कर्व स्केचिंग सीखेंगे, एंड अगेन विल बी डिस्कसिंग दिस कंसेप्ट्स इन डिटेल. इफ आई टू डिस्कस द कर्व ऑफ साइन 3x प्लस पाई बाय 4, मान लीजिए एक कर्व है साइन 3x प्लस पाई बाय 4. साइन x 2 पाई से पीरियोडिक है. इफ इट इज साइन 3x प्लस पाई बाय 4, in that case yes this is going to be a periodic function, but period of that function changes here. That period of that function changes because of the change in the coefficient of x. x का coefficient अगर change होता है तो कर्व का function का जो period है वो change होगा. It is going to be sin x का period 2 pi है, it is going to be 2 pi divided by coefficient of x which is 3. It is 2 pi by 3. It is 2 pi by 3, है ना. तो अभी यहीं तक रखते हैं अपन बात. पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को स्केच करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं. बोले सर ये बिल्कुल अभी बेसिक लेवल, बहुत ही इनिशियल लेवल पे हमने इसको डिस्कस किया, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन के साथ साथ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन ऑल्सो. y इक्वल्स टू एफ एक्स. कर्व स्केचिंग से पहले उसको देख रहे हैं हम, बिफोर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि अब हम उसको साथ में देखना चाहेंगे. y equals to fx is some function there, even function. Even functions, y equals to fx is some given function. In place of x, if I keep minus x, जो भी given function है, again I am telling you, we'll be discussing question based on the periodic function as well as even odd functions. We'll be discussing in detail and separately. ये केवल एक basic information दे रहा हूँ मैं आपको. In place of x, if we keep minus x, फंक्शन जो भी गिवन फंक्शन है उसमें x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, इफ यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन, अगर आपको सेम फंक्शन मिलता है, दैट्स नथिंग बट द इवन फंक्शन. और जैसे एग्जांपल की बात करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ x square is a parabolic function opening upward parabola with vertex 0, 0. f of minus x अगर रखूंगा, that will be minus of x and square of that which is x square and which is nothing but f of x. f of minus x is equals to f of x, even function. x square को अगर स्केच करते हैं, अब x square को स्केच करना कोई बड़ी बात नहीं हुई. इवन डिग्री का कर्व है, ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, जीरो पे वैल्यू जीरो होगी. पैराबोला वैसे भी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विद वर्टेक्स 0, 0 लाइक दिस. ये कर्व होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. पहले भी हमने बनाया था इसको 1 1 मेनी 1 डिसाइड करते समय. ओके, सो यस इट्स एन इवन फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. एनी इवन फंक्शन, जो भी इवन फंक्शन होगा, बिकॉज फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x अगर मैं माइनस एक्स रखता हूं मैं, एंड इफ आई एम गेटिंग द सेम फंक्शन, तो हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है एंड दैट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. जो भी इवन फंक्शंस होंगे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे. ठीक है. एंड वन मोर फंक्शन इज देयर विच इज ऑड फंक्शन. इन केस ऑफ ऑड फंक्शंस, इन प्लेस ऑफ x इफ वी कीप माइनस एक्स, x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, एंड इफ यू आर गेटिंग माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, दैट इज नथिंग बट द ऑड फंक्शन. छोटा सा एग्जांपल लें अगर हम, like if I just take fx equals to x,
y equals to x, that's nothing but a linear function, straight line है. y equals to x passing through the origin, fx equals to x. ये y equals to x. ठीक, दैट्स नथिंग बट द ऑड फंक्शन, बिकॉज यहां पर अगर आप माइनस ऑफ एफ एक्स, राइट. एक और देख लीजिए, इफ आई टेक द फंक्शन इज लेट्स से एक्स क्यूब, ऑड डिग्री का कर्व है ना, एक्स क्यूब. इट इज बिकमिंग माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑड फंक्शन. एक्स क्यूब को अगर आप स्केच करते हैं, 0 पे 0, 1 पर 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, -1 क्यूब विल बी -1, -2 क्यूब विल बी -8. और स्केच करें अगर आप, कुछ ऐसा फंक्शन निकल के आएगा. द ओनली पॉइंट हियर इज, जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं यहां पर, बोथ द फंक्शन या ऑड फंक्शंस की बात करें, दोनों फंक्शन fx इक्वल्स टू x और fx इक्वल्स टू x क्यूब, ये दोनों ऑड फंक्शन है. और ऑड फंक्शंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है. दो फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ये इन्फॉर्मेशन अभी क्लास 11th वालों को भी देते हैं हम लोग. क्लास 11th में जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब पढ़ा है मैंने अभी रिसेंटली, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो ये इन्फॉर्मेशन रहती तो बेहतर होता उनका उसको समझने के लिए. अभी तो आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बात अलग है, बट क्लास 11th वालों को भी इतना सा तो बता ही देते हैं कि यार ये इवन ऑड है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं या सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलिए या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बोलिए, है ना. पॉइंट इज, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स. कॉस माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज ऑलवेज सेक थीटा. तो कॉस माइनस एक्स इज कमिंग एज कॉस एक्स, सेक माइनस एक्स इज कमिंग एज सेक एक्स. वो दोनों फंक्शंस इवन फंक्शंस हैं. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा. ऑड फंक्शंस हैं. जब हम स्केचिंग करेंगे तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा. दोस टू फंक्शंस आर इवन फंक्शंस गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ये हम स्केचिंग करते समय भी देख लेंगे. कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा, सेक थीटा, दोस टू आर नथिंग बट द इवन फंक्शंस. ऑड फंक्शंस की बात करें, ये रीजन है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि कर्व स्केचिंग हमारा परफेक्ट हो. ठीक, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं हर फंक्शन इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन होना कंपलसरी है, जरूरी नहीं है. देयर मे बी मेनी ऑफ फंक्शन जो ना इवन होंगे ना ऑड होंगे. नाउ विल बी स्केचिंग द कर्व्स ऑफ sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x. उसको भी समझने के लिए बहुत बेसिक से अगर बात करें, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन से जो आपके पास होना चाहिए. इवन ऑड और पीरियोडिक फंक्शन बहुत एलिमेंट्री लेवल पे डिस्कस किया हमने, क्योंकि जब कर्व स्केच करोगे विल बी गेटिंग द आइडिया. ओके ओके, ये sin x आपने ड्रॉ किया तो ये sin x, अच्छा ये ड्रॉ करने के बाद पता लगेगा ओके तो ऑड फंक्शन है. cos x आप ड्रॉ करोगे विल बी गेटिंग इट एज एन इवन फंक्शन. इसलिए मैंने वो टर्म्स आपको समझाई. जो बेसिक डिस्कशन होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का, वो यूनिट रेडियस वाले सर्कल के थ्रू होता है. उसको भी देख लें जरा, बहुत बेसिक से बात कर लें आज. देखो
इफ आई कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये बात तय है कि आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबसे फेमिलियर हैं या होना चाहिए क्लास 12 में, बट हम देखना चाहेंगे एक बार इसको। यूनिट रेडियस का एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया हमने, एक्स एक्सिस, while keeping the origin at the center of that circle. यूनिट रेडियस या वन रेडियस की जब बात करूंगा तो वन कॉमा जीरो, ये तो हमने एक्सट्रीमिटीज लिख दी है, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए ए डैश बी बी डैश के। इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल, लेट्स से पी पॉइंट एक्स कोमा वाई, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया पी पॉइंट, ओपी को ज्वाइन किया, ठीक। एंगल एओपी इज थीटा, एंगल एओपी को थीटा कंसीडर किया, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से इट मीट्स एट एम, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। यूनिट रेडियस का सर्कल है तो वन रेडियस का सर्कल है, ओपी की वैल्यू 1, यूनिट रेडियस वन रेडियस का सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, बहुत बेसिक लेवल पे देख रहे हैं हम लोग इसको। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी में जरूर मैं लिख सकता हूं दैट एक्स इज नथिंग बट cos theta, y is nothing but sin theta। यूनिट रेडियस का सर्कल कंस्ट्रक्ट किया सो दैट यू विल बी गेटिंग द आइडिया अबाउट द क्वाड्रेंट। और ध्यान से देख लीजिएगा, cos थीटा sin थीटा, ठीक है। और ये चारों क्वाड्रेंट्स ना 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन इट रीचेस एट द 360 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ रेडियन डिस्कस करोगे 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, एंड अगेन सेम वैल्यूज रिपीट होने वाली है। 2 पाई के बाद में क्या होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, लाइक वाइज। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखें, थोड़ा सा नेचर क्या है ना, इससे आपको कर्व स्केचिंग में ग्रिप मिलेगी, समझ में आएगी बात, केवल रट लिया ऐसा नहीं होगा। लाइक इफ आई टेक कर्व ऑफ साइन थीटा, y की वैल्यूज को अगर मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y की वैल्यूज देखें जरा, व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y की वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90, वैल्यू ऑफ y इज 0, वैल्यू ऑफ y इज बिकमिंग 1, साइन थीटा जो y है, x क्या है तो x इज cos थीटा, y इज साइन थीटा, ये समझ लीजिएगा प्लीज, x इज cos थीटा, y इज साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 में इंक्रीज हो रही है। साइन थीटा 0 से, वैसे बोले हाँ सर ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वैल्यू हम जानते हैं, साइन थीटा की वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी इंफॉर्मेशन से उनको एक साथ करना चाह रहे हैं हम तो बस। तो साइन थीटा y की वैल्यू 0 से 1 में इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्रीजेस फ्रॉम, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी भी होंगी वो रिकेप हो जाएगा 0 to 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू 0 से 1 में इंक्रीज हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, y इज साइन थीटा, अभी cos थीटा को भी देख लेंगे, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, देख लीजिए, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाई 2, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, 0 से -1 में डिक्रीज हो रहा है, ये फंक्शन है, आप देख रहे हो उसको। और फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0,
दैट्स अबाउट द साइन थीटा. व्हाट हैपेंस इन द फर्दर, क्या होगा, 2 पाई के बाद में इट रिपीट्स, वही सारी वैल्यूज रिपीट होंगी. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. 2 पाई पे जहां पहुंचे, इनिशियल लाइन पे पहुंच गए आप, 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाय 2, अगेन वही 0 से 1 में इंक्रीज होगा. 2 पाई प्लस पाई बाय 2 से 2 पाई प्लस मतलब 3 पाई तक सेम वैल्यूज रिपीट होने वाली हो. तो ठीक है ना. एंड दैट्स वाई पीरियोडिक वाली बात भी हमने देखी है, समझते हैं उसको. एग्जैक्टली इन द सेम वे एक्स को देखो जरा आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लास 11th की टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको ये. तो बहुत बेसिक लेवल पे जाके बात कर रहा हूं मैं. एक्स इज व्हाट, एक्स इज नथिंग बट कॉस थीटा. एक्स को देखो जरा आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 से 0, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0. वन से 0 में डिक्रीज हो रहा. सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यूज 0 से -1, अगेन सॉरी -1 से सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट 0 से -1 डिक्रीजिंग. इनिशियली क्या था, एक्स की वैल्यू 1 से 0 डिक्रीज होना, फिर 0 से -1 डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1. थर्ड क्वाड्रेंट -1 से 0, नाउ इट इंक्रीजिंग. बोले सर देख कहाँ रहे हो, एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, बस इतनी सी बात है. इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0. और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से ध्यान से देखिएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1. ये जो नेचर हुआ, y इज नथिंग बट अबाउट द साइन थीटा एंड x इज नथिंग बट अबाउट द कॉस थीटा. ये उनका नेचर समझ में आया हमको. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. You are aware of first quadrant all the angles remains positive, second quadrant sin theta and cosec theta remains positive, third quadrant tan theta and cot theta remains positive, and fourth quadrant cos theta and sec theta positive. ठीक, ये दोनों कर्व्स को डिस्कस किया. कौन से, दिस इज sin theta. अब sin theta अगर आपको पता है तो if you take the reciprocal of that 1 by sin theta you will be getting the nature of the cosec theta. ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज में इंक्रीज होगा. ये x विच इज cos थीटा, 1 by cos थीटा करोगे तो you'll be getting the idea about the sec थीटा. ये भी कर्व स्केचिंग के समय मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई हमारे पास में. एंड नाउ विल बी स्केचिंग द कर्व ऑफ sin थीटा. अब हम sin थीटा से बात करते हैं जरा. यूनिट रेडियस वाले सर्कल से एक बात और आपने क्लियर हुई कहीं ना कहीं कि जो x की रेंज है, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दैट x, रेंज ऑफ x, तो x की जो रेंज है -1 to 1. जरा ऑब्जर्व करें अगेन उस सर्कल को, अगर आप फिर से देखते हैं यहाँ पर जो इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं, दैट रेंज ऑफ x इज फ्रॉम -1 to 1. x की रेंज मतलब क्या होगा, cos थीटा -1 to 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. थीटा की सारी वैल्यूज के लिए रेंज ऑफ cos थीटा की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में होंगी, और एक्सट्रीम वैल्यूज -1 और 1 है. मैक्सिमम वैल्यूज 1 और मिनिमम वैल्यूज -1. -1 से कम नहीं होगा और 1 से एक्सीड नहीं करेगा. एंड लाइकवाइज अगर आप y को देखते हो, y कोऑर्डिनेट को भी अगर आप ऑब्जर्व करो, -1 to 1, y is nothing but sin theta, and range of sin theta is again -1 to 1. -1 is the least value and 1 is the maximum value. उससे बाहर नहीं जाने वाला. ठीक है ना, ये हमें रेंज भी मिली. Now we sketch the curve of fx equals to sin x. देखिएगा, हमने काफ़ी सारी बात कर ली इसमें. इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, राइट. एंड देन वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ यूनिट रेडियस सर्कल ऑल्सो. और अब जरा उन सारी बातों को क्लब कर दें, समराइज कर दें, और आपको अब वो कर्व हमेशा के लिए ध्यान रहेगा
आसानी से आप ड्रॉ भी कर पाएंगे। और एक और बात मैं समझा दूं आप लोगों को, जो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप लोग बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करने में। इसका मतलब ये हुआ कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 27, बहुत बेसिक लेवल की बात हो गई है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। साइन 7 पाई बाय 6, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, 11 पाई बाय 6, क्या कर रहे हैं, तो बहुत परेशानी हो जाएगी ना। कर्व स्केचिंग से एरियाज फाइंड आउट करना, डेफिनेट इंटीग्रल, कहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए कि पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, गलत सलत वैल्यू लिखोगे गलत सलत रिजल्ट होंगे और उतने गलत फिर मार्क्स मिलेंगे। तो साइन थीटा बना लें एक बार। अब हम बना लेते हैं इसको 2 पाई वाले इंटरवल में स्केच करते हैं, फर्दर उसको फिर आगे तक की बात करें, देखिएगा। टू पाई के इंटरवल में जिस कर्व के बारे में अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शंस रिमेन्स पॉजिटिव एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी आर स्केचिंग sin x 0 से पाई बाय 2। अगर आप देखते हैं दैट कर्व, अभी जरा चेक कर लो, y को हमने sin x लिया था, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। सेकेंड क्वाड्रेंट sin थीटा रिमेन्स पॉजिटिव बट डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। थर्ड क्वाड्रेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। सारी बातें अभी आ जाएगी, नहीं लिख पाए थे तो फिर से देख लीजिएगा। कुछ ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ इट इज नेगेटिव, राइट। First quadrant increases from 0 to 1, second quadrant decreases from 1 to 0, third quadrant still decreasing from 0 to -1 and fourth quadrant increases from 0 to 1। अभी नहीं लिख पाए थे तब भी आप लिख पाएंगे। After 2 pi is what is happening, सेम कर्व रिपीट होने वाला है, 2 pi से 2 pi plus pi by 2, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आ जाएगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। टू पाई प्लस पाई बाय 2, 2 pi plus pi by 2, that will become 5 pi by 2। 3 pi plus pi by 2, 7 pi by 2। देन 4 pi। ठीक। लाइकवाइज नेगेटिव हाफ में अगर आप बनाते हैं, आप ये भी जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं एंगल वो दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए अगर हम डिस्कस करें, दैट कर्व इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आप बता पाएंगे मुझे, अगर मैं कहता हूं -π/2 to 0, एनीबडी कैन टेल मी द क्वाड्रेंट। -π/2 to 0 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? देखो ये तो आपको समझ में आता है कि 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। लेकिन ये कब? जबकि आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो। बट इफ यू आर मेजरिंग क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा। ये 0 तो ये -π/2, माइनस ऑफ पाई, ये -3π/2 और फिर -2π, लाइक दैट।
जो बातें आप यहां पर ऑब्जर्व कर पाएंगे, पहले समझ लीजिए। सबसे पहली बात, वी हैव डिस्कस द टर्म डोमेन, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को सीखना समझना है, इसलिए हमने एक साइन एक्स के लिए इतनी मेहनत करी, सारे कर्व्स के लिए। साइन एक्स, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, डोमेन, वी हैव डिस्कस द टर्म डोमेन हियर। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स साइन एक्स इज डिफाइंड, एक्स की किन वैल्यूज के लिए साइन एक्स डिफाइंड है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स साइन एक्स इज डिफाइंड, साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर all real values of x. तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन sin x का जो डोमेन है, all real values, that curve is taking all the values, yeah, that is defined for all real values of x. As far as range of sin x is concerned, range का मतलब है x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग sin x की वैल्यूज, and that is clearly आप देख पा रहे हो कि that curve is always there from -1 to 1 including -1 including 1. Range of sin x is clearly -1 to 1 inclusive both values. 1 is the maximum value and -1 is the minimum value. That's the range. Third one, पहले समझ लें. Yes, it's a periodic function. We have discussed the period of a function. That's the least positive real value which is independent of x. That's the value after which, after that time interval, that curve repeats. If you just observe that function sin x, it's a periodic function and which repeats after an time interval of 2 pi. ये 2 pi का इंटरवल, ये 2 pi में एक साइकिल sin x की कंप्लीट हो रही है. From 2 pi to 4 pi, again it is taking the same value, same curve repeat हो रहा है. 4 pi से 6 pi में सेम कर्व रिपीट होगा, 6 पाई टू 8 पाई इन फर्दर, नेगेटिव हाफ में -2 पाई से 0 में सेम कर्व इज देयर. दैट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई. दैट्स द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन एक्स, कांस्टेंट वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू है 2 पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. व्हाई डिड द टर्म लीस्ट इज देयर? द लीस्ट इज, आप कहने में तो आप ये कह सकते हो कि 4 पाई से पीरियोडिक है, आप बोलने में आप बोल सकते हो 4 पाई से पीरियोडिक है. बोले जितना कर्व 0 से 4 पाई में बन रहा है, सेम कर्व 4 पाई से 8 पाई में बनेगा, 8 पाई से 12 पाई में भी सेम कर्व बनेगा. तो 2 पाई बोल सकते हो आप, लेकिन सॉरी 4 पाई भी बोल सकते हो, लेकिन हम लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक द लीस्ट वैल्यू. जो लीस्ट वैल्यू है, दिस टाइम इंटर लीस्ट वैल्यू जिसके बाद में कर्व रिपीट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट 2 पाई. लीस्ट है तो बोले सर पाई बोल दो, ऐसा नहीं, एक साइकिल कंप्लीट कहां हो रही, तो 2 पाई के इंटरवल में. दैट्स व्हाई लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, एंड दैट्स एन ऑड फंक्शन. f of minus x is equals to minus of fx साइन ऑफ माइनस एक्स. भी सारी बातें समझ में आएंगी आपको. माइनस ऑफ साइन एक्स, ऑड फंक्शन, एंड ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और इन अपोजिट क्वाड्रेंट. जस्ट ऑब्जर्व दैट फंक्शन. उस फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व है तो इधर थर्ड में, ठीक है, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट. अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, दैट इज देयर फॉर ऑड फंक्शन. साइन थीटा ऑड फंक्शन है. लाइक दिस. आ रही बात समझ में? तो ये सारी बातें लग गई. इट्स एन ऑड फंक्शन, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई. दैट्स द कर्व डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन with it is defined for all real values of x. So domain of that function is all real values. Range of that function -1 to 1. 1 से कभी exceed नहीं करेगा, -1 से कभी less नहीं होने वाला. At the same time अगर मैं आपसे पूछता हूँ sin x is equals to 0, तो x क्या लिख के आओगे आप? sin x इक्वल्स टू 0. वैसे आप क्लास 11 पढ़ चुके हैं, आप लिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होना चाहिए. sin x इक्वल्स टू 0, यू आर नॉट गोइंग टू से x इक्वल्स टू 0. sin x इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू n पाई.
n is some integer value there. Sin x equals to 0, x equals to n pi, n is some integer value there. Sin x कब कब 0, ये 0 पर, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, minus pi, minus 2 pi. क्लियर? ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी. Now we take the curve of cos x. So during the discussion of this unit radius circle, we have discussed that range of that function is minus 1 to 1, as well as we have discussed that cos x first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, what values it's going to take. अब जरा उस कर्व को भी स्केच कर लिया जाए. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2, cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0. सेकेंड क्वाड्रेंट cos थीटा पॉजिटिव कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. तो cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट 0 से -1. थर्ड क्वाड्रेंट -1 to 0. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 0 to 1, अगेन इंक्रीजिंग. समझ में आ रही ना बात? ये दैट वी हैव डिस्कस्ड, वही बात यहाँ पर भी लिख दी हमने. फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट इट इज नेगेटिव. पाई पे ये -1 बनेगा. व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर 2 पाई? तो 2 पाई के बाद में 2 पाई प्लस पाई बाय 2, दैट विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिपीट्स. लाइकवाइज नेगेटिव हाफ में देख लें. minus pi by 2 which is the fourth quadrant, minus pi by 2 0 is the fourth quadrant there, positive. Minus pi, minus 3 pi by 2 and minus of 2 pi. That's the curve of cos theta. आप जरूर ऑब्जर्व कर पाते हैं cos minus x is equals to cos x. Cos minus theta is cos theta only. Fourth quadrant or first quadrant it is positive, second quadrant, third quadrant it is negative. Cos minus theta is cos theta. कर्व को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन इज क्लियरली सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. जस्ट ऑब्जर्व दैट फंक्शन. Now as far as domain of that function is concerned, cos x domain, for what values of x that function is defined, that is defined everywhere. कोई रोक नहीं है इसमें, किसी पॉइंट पे ये फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है ऐसा नहीं हो रहा है. इज डिफाइंड एवरीवेयर. डोमेन ऑफ दैट फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज. रेंज ऑफ दैट फंक्शन cos x, range of that function -1 to 1. -1 is the least value, 1 is the maximum value. ठीक है? Range of that function -1 to 1. Yes, it's a periodic function which repeats after certain time interval, and it is clearly a periodic function with period. Two pi
इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। आप चाहें तो -π/2 से देख लें, तो -π/2 से 3π/2 के इंटरवल में देख लें आप कर्व को। ये -π/2 से π/2 अपर हाफ, π/2 से 3π/2 लोअर हाफ, टोटल एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। -π/2 से 3π/2 में पीरियड ऑफ दैट फंक्शन इज 2 पाई। या आप 0 से देखें तो 0 से 2 पाई तक में, और 2 पाई से 4 पाई अगेन रिपीट्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, range of that function -1 to 1, domain of that function all real values, it's a even function symmetric about y-axis, cos minus theta is cos theta always। और अगर आपसे कोई पूछता है cos x equals to 0 when, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी आप पढ़ते हैं cos x equals to 0 कब कब 0, आप ऑब्जर्व करते हैं 0 सॉरी नॉट 0 0 पे 1, π/2 3π/2 5π/2 7π/2 -π/2 -3π/2, odd multiple of π/2। odd multiple of π/2, cos x is becoming 0 0 for what values of x, odd multiple of π/2। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए whenever we discuss about the curve of cos x। Now we take the curve of cosec x first. The reason is reciprocal of sin x। और उसी बेसिस पे कर्व को स्केच करेंगे, आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, कभी दिक्कत में नहीं आओगे। देखो फर्स्ट आई स्केच द कर्व ऑफ sin x। एक बार फिर से sin x बना लेता हूं मैं। डिस्कशन मत करिएगा, यही कर्व बहुत दिक्कत दे जाते हैं ये, क्योंकि अभी आप आगे जब डेफिनेट इंटीग्रल एरियाज और फंक्शंस में जब आप पढ़ेंगे मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, तो पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि आपसे बेसिक फंक्शन तो ठीक से बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रीज़न है कि हम इसको बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 11th में हो गया तो आप करके आना और हो गया, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, अब मैक्सिमम तो तब बनेगा जब आपको साइन और कॉस तो ठीक ढंग से स्केच हो जाए। मैंने फिर से sin x का कर्व स्केच किया। रेंज ऑफ दैट sin x -1 to 1। बोले ये तो हो चुका है सर। हाँ एग्जैक्टली हो चुका है। इसी की हेल्प से हम cosec x बनाएंगे और वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में रहेगा, अब आगे कभी दिक्कत में नहीं आओगे। द रीजन इज cosec x इज नथिंग बट 1/sin x। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डोमेन ऑफ sin x, आपने पूछा था सर डोमेन डिसाइड करना। डोमेन ऑफ sin x, तो that sin x is defined for every real value of x। इसकी जो रेंज आ रही है वो -1 से 1, सारी वैल्यूज के लिए -1 से 1 ठीक है। इट इज नॉट बिकमिंग undefined for any value of x, so domain is all real values। but when we say cosec x and when we discuss about the function domain of the function cosec x, तो अब ध्यान से सुनने वाली बात, cosec x is 1/sin x। डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है तो एक बात तय है कि cosec x के डोमेन में देयर शुड नॉट बी एनी सच वैल्यू फॉर विच sin x बिकम 0। क्योंकि अनडिफाइंड अगर कभी बना, x की जिस वैल्यू के लिए cosec थीटा अनडिफाइंड बनेगा या cosec x अनडिफाइंड बनेगा, डोमेन में नहीं होगा। डोमेन में ही तो हमने देखा है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रियल फंक्शंस ना। आपने जब स्क्वायर रूट फंक्शन डिस्कस किया तो एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात
डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो सेम इज हियर। तो डोमेन ऑफ cosec x ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग जहां sin x जीरो बन रहा है। कहां sin x जीरो बन रहा है? n पाई। तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग n पाई। ठीक, n पाई पे क्या हो रहा है देखो ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, साइन थीटा जीरो बन रहा है। तो साइन थीटा अगर जीरो बनेगा तो कॉसेक थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। हम क्या करते हैं प्लॉट करने के लिए, एग्जैक्टली जिन पॉइंट्स पे साइन थीटा जीरो बन रहा है ना, डोमेन में ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग n पाई, हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। आई एम गिविंग यू द मेथड टू स्केच द कर्व ऑफ cosec x। पाई पे साइन थीटा जीरो बन रहा है तो cosec थीटा विल बिकम अनडिफाइंड। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली इसमें हमने, रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा आपको। एंड यू मस्ट बी वेरी मच कंफर्टेबल फॉर कंप्लीट कैलकुलस। ये जो डिस्कशन है इट इज नॉट फॉर फंक्शंस, बिल्कुल मत सोचिएगा, ये डिस्कशन कैलकुलस का है। ये y एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, क्यों क्यों का भी जवाब समझ जाएंगे आप। देखो cosec x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या हो रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1, ये समझ लेना तो मजा आ जाएगा। तो cosec x 1 बाय साइन एक्स, साइन एक्स इंक्रीज हो रहा है 0 से 1 में, है ना। 0 से 1 में मतलब ये सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज ले रहा है 0 से 1। 1 पे cosec थीटा क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, और 0 का रेसिप्रोकल इज अनडिफाइंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट cosec थीटा कहां पॉजिटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, सॉरी cosec थीटा इज पॉजिटिव जहां sin थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ में इट इज नेगेटिव। देख लीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट cosec थीटा डिक्रीजेज, ये 0 से 1 में इंक्रीज हो रहा है, और cosec x डिक्रीज होगा। फ्रॉम इंफिनिटी टू 1, पाई बाय 2 से पाई, साइन थीटा डिक्रीज होता है 1 से 0 में, रेसिप्रोकल ऑफ दैट इंक्रीजिंग। पाई पे जब ये साइन थीटा, साइन पाई विल बिकमिंग 0, तो cosec पाई विल बिकमिंग अनडिफाइंड। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, 3 पाई बाय 2 पे -1, पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पे -1। थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा नेगेटिव, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ दैट, साइन थीटा तो डिक्रीज हो रहा है -1 से, सॉरी साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है 0 से -1 में, तो cosec थीटा क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये आपने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ही इसलिए ड्रॉ करी है। It will increase from -infinity to -1, and then जब साइन इंक्रीज होगा cosec डिक्रीज होगा, -1 से -infinity। That's the behavior of cosec x in first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, reciprocal of sin x। ये ब्लैक मार्कर से जो स्केच किया that is clearly cosec theta। What happens next? तो what happens next? That curve repeats। फिर क्या होता है? Like this। ये इसलिए क्यों कई बार बच्चों को बनाने नहीं आता, cosec थीटा इग्नोर कर दिया, साइन कॉस बनाना आता, बाकी कुछ नहीं आता, बोले बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ साइन एक्स टू स्केच द कर्व ऑफ cosec x। आप जब रेंज की बात की जाएगी, cosec x की रेंज, डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग n पाई,
रेंज ऑफ cosec x, x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग cosec x की वैल्यूज। आप ये देखोगे कि ये कर्व -1 से 1 में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कौन सा? cosec थीटा। माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड देन 1 से लेकर इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी इज द रेंज ऑफ दैट कर्व। और ये ध्यान रखिएगा कि मैंने साइन एक्स का कर्व केवल आपकी हेल्प के लिए बनाया था कि यार जहां ये इंक्रीज हो रहा है उधर ये डिक्रीज हो रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ दैट, है ना। इसको हटा देते हैं फिलहाल। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली थी हमने, कहां पर? जब साइन थीटा 0 बन रहा था। द रीजन इज जहां साइन थीटा 0 बनेगा कॉसेक थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। कर्व स्केचिंग में हेल्प मिलती है हमको उससे। पता लगा दोनों बना के आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी कि कॉसेक थीटा पूछा, साइन भी बना दिया और कॉसेक बना दिया। दैट्स द कर्व ऑफ कॉसेक एक्स। All real values excluding n pi is the domain of that function. Range of that function minus infinity to -1 union 1 to infinity, including -1 including 1. Yes, it's a periodic function. And clearly the period of that function is 2 pi. Even function, odd function, that's the curve. Symmetric about origin. It's an odd function. Odd function. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री देख लो आप। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इट्स देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब ये दैट वाज द रीजन कि हमने थोड़ा सा इवन ऑड और पीरियोडिक फंक्शन को समझा था। नाउ आई विल बी स्केचिंग द कर्व ऑफ sec x, which is nothing but 1 by cos x, and again we'll be taking the help of the curve cos x। तो पहले cos x को स्केच कर लेते हैं, and as we have discussed sin x और उसके अकॉर्डिंग cosec x बनाया था, ठीक वैसे cos x स्केच करके उसका रेसिप्रोकल देखेंगे। और एक बार जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, देखो प्रीवियस केस में मैंने cosec x को बनाने के लिए पहले sin x बनाया और उसका फिर रेसिप्रोकल लिया। जरूरी नहीं है cosec x का है तो डायरेक्टली cosec x बनाओ आप। ये तो केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखो ये sin x है और ये उसका रेसिप्रोकल है, कि जहाँ डिक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, ये 0 से 1 में जा रहा है तो अच्छा ये इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। आप कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको डायरेक्ट cosec x पूछा डायरेक्ट cosec x बताओ, sec x पूछा sec x बताओ। बट फिलहाल अगेन फिर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले cos x को ड्रॉ करता हूँ। डोमेन ऑफ sec x, एक सीधी सी बात है, cos x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज ऑफ दैट फंक्शन -1 to 1, ठीक। लेकिन जब
sec x के डोमेन की बात की जाएगी तो sec x इज 1 बाय cos x. टू डिसाइड द डोमेन ऑफ sec x, cos x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे cos x 0 बनेगा उन पॉइंट्स पे sec x अनडिफाइंड हो जाएगा. तो जब मुझे डोमेन लिखना होगा तो डोमेन इज गोइंग टू बी x इज गोइंग टू बी ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स वेयर cos x इज बिकमिंग 0, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एक्सक्लूड कर देंगे हम. That's how we are going to decide the domain. Sin x cos x में कहीं कोई परेशानी नहीं है, but sec x domain of that function all real values excluding odd multiple of pi by 2. और again odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, minus pi by 2, इन सारे पॉइंट्स पे cos x 0 बन रहा है तो sec x undefined बनेगा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. I draw the lines parallel to the y axis. जब मैं रेसिप्रोकल लेता हूं ध्यान से देखिएगा, 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा इज डिक्रीजिंग, थोड़ा सा बहुत एग्जैक्ट कर्व नहीं है बट ठीक है, cos थीटा इज डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 0. तो जिन cos थीटा इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 0, sec थीटा रेसिप्रोकल ऑफ दैट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to infinity. ये डिक्रीज हो रहा है बस. cos x इज डिक्रीजिंग तो sec x इज इंक्रीजिंग. राइट. देन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x is still decreasing from 0 to -1, right? So when I take the reciprocal of that, sec x increasing from minus infinity to -1. Second quadrant, first quadrant cos theta positive, second quadrant is negative, third quadrant cos theta increase to sec theta decrease, like this. And likewise further. That's the curve of sec x जो कि ब्लैक मार्कर से स्केच किया है. रेंज ऑफ दैट कर्व, रेंज अगर मुझे लिखना होगी, रेंज ऑफ sec x minus infinity to -1 union 1 to infinity. That's the range. x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग sec x की वैल्यूज. cos x का कर्व केवल रेफरेंस के लिए बनाया था मैंने, आपको उसको रब कर देता हूं मैं अभी. आप डायरेक्ट बनाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं लगना चाहिए, केवल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक. दिक्कत है कुछ? even function, odd function. It's clearly even function which is symmetric about y-axis sec minus theta sec theta. ठीक है, sec minus theta is sec theta, and again it's a periodic function.
-π/2 से 3π/2 के इंटरवल में देखें या 0 से 2π के इंटरवल में देखें, दैट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π, ये 2π से पीरियोडिक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें, पीरियोडिक विथ पीरियड 2π, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज, ठीक, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, एंड हाउ टू स्केच द कर्व। और जब स्केचिंग की बात आएगी तो आपका डायरेक्ट स्केचिंग हो जाना चाहिए, मतलब फास्ट डायरेक्ट स्केचिंग में, मतलब ऐसा नहीं अलॉन्ग विद द वैल्यूज, ये कब क्या बन रहा है। ये बोले सर हाँ बना देते हैं, ये कर्व बना देते हैं, आपने कहा ना सर सेक एक्स, तो ये बना दिया ऐसे 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 बन गया सर, ऐसा नहीं चलेगा। अलॉन्ग विद द वैल्यूज के π/2 पे क्या, पाई पे क्या, 3π/2 पे क्या, 2π पे क्या, -π/2 पे क्या, ऐसा। और बिहेवियर आपको समझ में आना चाहिए कि कब ये इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, क्यों। That's about sec x. And now we'll be sketching the curve of tan x as well as cot x. So we have discussed that sin x, cos x, sec x, cosec x, all four functions were periodic function with period 2π. But now we'll be discussing two more functions, tan x and cot x. सेपरेटली डिस्कस करने के लिए रीजन भी है और आप समझ पाएंगे उसको। व्हेन वी से fx इज इक्वल टू tan x, तो जो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेंगी, tan x इज नथिंग बट sin x बाय cos x। So if I ask you the domain of this function, fx is equals to tan x is nothing but sin x by cos x, and if I ask you the domain of this function, इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन पूछता हूं आपसे, तो एक सीधी सी बात है, sin by cos डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, तो cos x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो डोमेन अगर मुझे लिखना होगा तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। So whenever I have to plot the curve of tan x, मैं क्या करूंगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर फंक्शन प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, आई विल बी ड्राइंग द लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन स्केच कर लूंगा। एक बात तो ये हुई। अच्छा, tan x इज बिकमिंग 0, इफ आई आस्क यू tan x इक्वल्स टू 0 कब, तो tan x इक्वल्स टू 0 व्हेन sin x बिकम्स 0। तो tan x इक्वल्स टू 0 व्हेन sin x इक्वल्स टू 0 कब, x इक्वल्स टू n पाई, जो भी n लिखा गया क्लियरली इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक, tan x की वैल्यूज को भी अगर आप देखें, tan x इज क्लियरली पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ। और tan x की वैल्यूज देखें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री इट इज 0, tan 0 0, tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 45 it becomes 1, tan 60 डिग्री it is √3 and tan 90 डिग्री it becomes undefined. Within that time interval, within that 0 to 90 डिग्री अगर मैं डिस्कस करूं, तो tan 0 0 और tan 90 it becomes undefined। तो 0 से 90 में ये 0 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी देखने वाली बात। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में लाइंस स्केच किया मैंने इसको। देखिएगा, tan x,
ये इतना डिस्कशन केवल इसलिए कि बहुत कंफर्टेबल हो जाओ आप। ये कर्व आएगा मिनिमम ऑफ 10x कॉमा कॉट एक्स, और मैंने देखा बच्चों से 10x ही नहीं बनता ठीक ढंग से, तो मिनिमम ऑफ 10x कॉमा कॉट एक्स और काय का एरिया और काय की रेंज, कर्व तो बन जाए ठीक ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहने में तो कह दिया कि यार 11th में हो गया, अलग हटाओ, आप तो आगे की बात करें, बहुत कुछ है हाई लेवल का डिस्कस करने को, लेकिन यही नहीं, बेसिक ही नहीं आता। प्रीवियस टेस्ट में भी देखा है अपने कि डिफरेंशिएशन में कितनी बुरी हालत हुई है कई लोगों की, तो हम केवल हाई फाई का गाना नहीं गा सकते यहाँ पे, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट 10x 0 से 90 वी हैव डिस्कस 10 0 0 10 पाई बाय 2 इज बिकमिंग अनडिफाइंड, और 10 ऑफ माइनस एक्स minus of 10x, odd function symmetric about the origin, वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकेंड एंड फोर्थ नेगेटिव, माइनस पाई बाय 2 to 0 दैट्स नथिंग बट फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 to पाई बाय 2 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 to पाई दैट्स द सेकेंड क्वाड्रेंट, tan theta is going to be negative, pi to 3 pi by 2 third quadrant, tan theta is going to be positive. You are also aware of tan 180 plus theta is nothing but tan theta only, tan 180 plus theta tan theta बनेगा, so when you sketch the curve, that's the curve of 10x. रेंज अगर पूछी जाएगी आपसे, रेंज ऑफ 10x, इट्स क्लियरली ऑल रियल वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट्स द रेंज, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज पॉजिटिव, 0 से 0 पर 0 पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस पाई टू 0, 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, या आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेक करोगे आप तो यू विल बी गेटिंग नेगेटिव वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी टू 0। लेकिन एक बात जो ऑब्जर्व करोगे, 10x ओवरऑल एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, वी हैव डिस्कस sin x cos x sec x cos x, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करी, बट 10x को अगर आप ऑब्जर्व करोगे इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन ओवरऑल, it's a periodic function, it's a periodic function with period pi, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का इंटरवल आप लें, it is taking all values from minus infinity to plus infinity, same is happening from pi by 2 to 3 pi by 2, same is happening from 3 pi by 2 to 5 pi by 2. First quadrant positive, second quadrant negative, third quadrant after pi, pi plus theta, tan 180 plus theta is tan theta only, positive, fourth quadrant negative, like this you are going to sketch the curve. है ना, तो अब तक के जो फंक्शन थे वो 2 पाई से पीरियोडिक थे, बट इफ यू ऑब्जर्व दिस फंक्शन इट इज पीरियोडिक विद द पीरियड ऑफ पाई ओनली, ये पाई से पीरियोडिक है। आफ्टर दैट टाइम इंटरवल इट रिपीट्स, पाई के टाइम इंटरवल के बाद में कर्व, सेम कर्व रिपीट हो रहा है। ओवरऑल इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। ऑड फंक्शन tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई, domain of that function all real values excluding odd multiple of pi by 2, tan x is becoming 0 for x equals to n pi, and as far as range of that function all real values. Now fx is equals to cot x, again cot theta is nothing but cos theta by sin theta, so when we write the domain of that function cos x by sin x, और domain अगर मुझे लिखना होगा for what values of x that cot x is defined, so cot x is defined for all real values excluding sin theta cannot be equals to 0, all real values excluding n pi, all real values excluding n pi, r minus n pi,
साइन थीटा 0 बनेगा, कॉट थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दें वैल्यूज, r minus n pi, 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, minus pi, we are going to escape the lines parallel to y-axis there, because there cot theta will be taking value plus infinity or minus infinity. ठीक है, अच्छा cot theta will become 0, cot x 0 कब होगा? So cot x will become 0, so cot x will become 0 when cos x will become 0, cos by sin, so cos theta will become 0. Odd multiple of pi by 2, right? Cot theta is positive in first quadrant and third quadrant, negative in second and fourth. ठीक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप cot theta को देखते हो तो cot 0 undefined और cot pi by 2 पे it will become 0. If you just observe the behavior of cot x in the first quadrant, it decreases. कैसे डिक्रीज हो रहा है? प्लस इन्फिनिटी से 0. cot 0 is undefined and then cot 90 is 0. देख लें जरा, first quadrant cot theta positive decreases from infinity to 0. second quadrant cot theta is negative values आप लिख सकते हो 90 प्लस थीटा करके. when you calculate that cot minus theta is minus cot theta, उसकी बात करेंगे हम, लेकिन second quadrant में जब आप values calculate करोगे that will be negative values like this. Cot 180 plus theta again becomes cot theta. It's a third quadrant positive, and from infinity to 0 decreases. Cot minus x, minus of cot x, odd function सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, एंड यस इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पाई, एंड ओवरऑल इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. tan x कैसा फंक्शन है? tan x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एवरीवेयर इट डिक्रीजिंग, एंड रेंज ऑफ दैट फंक्शन that is nothing but minus infinity to plus infinity. all real values are the range of that function. इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए. एक बार समराइज कर ले उन सारी बातों को जो हमने डिस्कस किया है. फंक्शन sin x, domain of that function, the domain of that function as far as domain of sin x is concerned, that is defined for all real values of x. range of that function is minus 1 to 1. ठीक, period of that function 2 pi, an even function, odd function. It's an odd function where sin minus theta is minus sin theta, which is symmetric about origin or in opposite quadrant, and the last information is about sin x is equals to 0, so x is equals to n pi.
ठीक. If I say cos x, domain of that function is defined for all real values of x, range -1 to 1, including -1, including 1, period of that function 2 pi. Cos minus theta is cos theta, symmetric about y-axis, even function. Cos x is equals to 0, x is equals to odd multiple of pi by 2. If it is 10x, domain of that function, domain sin by cos तुरंत आपको ध्यान में आएगा, x is all real values excluding odd multiple of pi by 2. Range of that function, all real values from minus infinity to plus infinity. Period of that function pi. Even function, odd function, it's an odd function. Tan minus theta is minus of tan theta, and tan x is equals to 0. X is equals to tan theta will become 0 when sin theta is equals to 0. X is equals to n pi. Cot x, domain of that function, all real values excluding cot theta is cos by sin. Sin theta cannot be equals to 0. All real values excluding n pi. Range of cot theta, all real values. Period of that function is pi. Cot minus theta is minus cot theta. Odd function. And cot x will become 0 when cos theta will become 0. So cos theta will become 0 when odd multiple of pi by 2. Sec x, domain of that function, all real values excluding sec theta is 1 by cos theta. Cos theta cannot be equals to 0. Range of that function, minus infinity to minus 1, union 1 to infinity. Period of that function 2 pi, sec minus theta, sec theta, even function, symmetric about y-axis. And when sec x will become 0, so it will never become 0 because sec x will never take any values in between minus 1 and 1. It will never become 0. And finally it is about the cosec x. Domain is all real values excluding 1 by sin x, n pi. Range of that function, minus infinity to minus 1, union 1 to infinity including minus 1 including 1. Period of that function is 2 pi, and cosec minus theta is minus cosec theta. Odd function, and again it's never going to become 0 because it is never going to take any value from minus 1 to 1. And along with these facts, all these 6 curves, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, जिसमें हमने काफ़ी मेहनत करके उनको स्केच किया है, ये सारे कर्व्स आपके दिमाग में होना चाहिए और बहुत प्रॉपरली विद इन few seconds you must be able to sketch all these curves. कि जब जो ज़रूरत लगती है तो tan x से तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा दाएं बाएं, sec x से तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली आप स्केच करें उतना ज़रूरी है.